we were discussing the three levels of composing a business message, and you can view your writing at three levels. I have discussed it before: strong words, effective sentences, and coherent paragraphs. Now we were discussing about the strong words while composing a business message, that your words should be correct, your words should be strong, and you use effective words and phrases, and you should avoid grammar mistakes. And now and then you should balance abstract and concrete terms and words. So these all comes that composing your message and choosing powerful words. तो ये अभी हम एक ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. अब इस टॉपिक को जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद जो है हमारे पास है कि कंपोजिंग योर मैसेज, जिसका सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था राइटिंग के 3 लेवल्स है. जो सेकंड लेवल था वो था इफेक्टिवनेस ऑफ योर सेंटेंस या इफेक्टिव सेंटेंसेस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. थर्ड वन था जी कोहेरेंट पैराग्राफ. अभी हम जो फर्स्ट वन ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो था हमारा पहला पॉइंट ये था कि चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स. तो करेक्टनेस जो है, करेक्ट वर्ड्स में जो है अब जो है आफ्टर चेकिंग द और आफ्टर कीपिंग द बैलेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट टर्म्स, जिसमें हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्शंस क्या हैं और कंक्रीट टर्म्स क्या हैं, उनके दरमियान में जो है व्हेन व्हाइल यू आर कंपोजिंग अ बिजनेस मैसेज यू नीड टू बैलेंस बिटवीन abstractions and concrete terms and words. So reader, because the reason is that readers and you need to better is that you should go for concrete terms and phrases, because readers or audience also perceive concrete language more trustworthy. So in order to minimize the problem when using abstractions, try to balance abstract terms with concrete ones. And the next thing is that finding words that communicate well, कि आपने वो अल्फाज जो है वो चूज़ करने हैं, वो अल्फाज जो है वो ढूंढने हैं जो कि आपकी बात को बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बेहतर तौर पे जो है वो आपकी बात को कन्वे कर सकते हैं. सो फाइंडिंग वर्ड्स दैट कम्युनिकेट वेल, दीज आर द 4 थिंग्स. while composing your business message, you look for the most powerful words. This is the one thing, but the most powerful words are those. Number 1 is that you should choose strong, precise words, and second is that you need to choose familiar words. Third is that avoid cliches and buzzwords, and the fourth one is use jargons carefully. अब ये क्या है, इसके डिटेल में जाते हैं कि choose strong and precise words means what. It means that you need to, while composing a business message, you need to choose words that expresses your thoughts clearly, स्पेसिफिकली एंड स्ट्रॉन्गली. आपने वो वर्ड्स चूज़ करने हैं जो कि आपकी थाट्स को, आपके आइडियाज़ को क्लियरली, स्पेसिफिकली और स्ट्रॉन्गली जो है वो एक्सप्रेस कर सकें. इफ़ यू फाइंड यूजिंग मैनी एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, चांसेस आर यू आर ट्राइंग टू कंपनसेट फॉर वीक नाउन्स एंड वर्ब्स. ओके, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल while choosing your words. Your words should strong and precise and brief words use करने हैं, और वो words जो है ऐसे होने चाहिए that could express your thoughts clearly, specifically and strongly. Second is that choose familiar words when you will communicate, and if you want to communicate best with the words, so you need to choose those words that are familiar to both you and your reader. तो आप अपनी जो मैसेज है, बिजनेस मैसेज, उसमें जो है when you are composing your business message, you need to choose familiar words, those words which are not only familiar for you but also familiar for your reader or audience. आपने ऐसे वर्ड्स चूज़ करने हैं जो कि फेमिलियर हैं, जो कॉमन वर्ड्स हैं, जो जिनसे आप भी फेमिलियर हैं और आपका जो रीडर और ऑडियंस है वो भी उन वर्ड्स से फेमिलियर है. मोर ओवर, ट्राइंग टू यूज़ अनफेमिलियर वर्ड्स कैन लीड टू एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स. अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जिनका आपको खुद भी नहीं पता और जिनका मीनिंग का आपको भी नहीं पता, और अनफेमिलियर वर्ड्स हैं आपके लिए भी और आपके रीडर के लिए भी, तो इट मे क्रिएट एन एम्बैरेसमेंट सिचुएशन और एन एम्बैरेसिंग मिस्टेक फॉर यू. और इट नॉट ओनली कैन क्रिएट एन एम्बैरेसिंग मिस्टेक फॉर यू, बट इट कैन ऑल्सो leave a bad impression for your audience, and your audience will not be able to get or would not be able to get the complete meaning of your message. So you need to choose the familiar words if you want to communicate well. So choose familiar words which are familiar to both of you, to both you and your audience. Third one is that avoid cliches and buzzwords. अब ये cliches क्या होते हैं? अगर cliches को define किया जाए तो cliches are those words, those terms and phrases which are so common that they have lost some of their powerful meaning or some of their power to communicate.
क्लीशेज वो वर्ड्स होते हैं जो हम इतना कॉमनली यूज़ करते हैं कि वो एक क्लीशे बन जाता है और दे हैव लॉस्ट सम ऑफ देयर पावर, और वो अपना पावर और अपनी जो पावर और अपना जो मीनिंग है वो लॉस्ट कर देता है कम्युनिकेशन में. दीज वर्ड्स आर सेड टू बी क्लीशेज. अब कोई भी वो वर्ड्स हो सकते हैं, इवन के वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, टर्म्स हो सकती हैं, दैट बिकम्स क्लीशेज, जो कि क्लीशेज बन जाती हैं. तो क्लीशेज मीन्स these are those words who have lost their power to communicate. So avoid although familiar words, you need to use the familiar words, but you should avoid cliches. लेकिन आपने क्लीशेज़ को अवॉइड करना है. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि आपने सुना होगा अभी बिल्कुल 2-3 साल पहले जब पीटीआई की नई हुकूमत आई थी तो हर बंदा ये कह रहा था, एक बड़ा एक कॉमन सा फ्रेज बन गया था, नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान है. तो उसके बाद इट हैज़ बिकम अ क्लीशे. आपने ये नोटिस किया होगा, आप किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी शॉपकीपर के पास, किसी कुछ कहते हैं अच्छा ये चीज़ क्यों महंगी हो गई है, तो वो स्टार्टिंग में दे स्टार्टेड यूजिंग दिस टर्म, दिस क्लीशे वेरी कॉमनली कि इट हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग, कि उसका मतलब ही जो है वो ख़त्म हो गया. आप किसी वजह जाते हैं ये चीज़ महंगी क्यों है, तो कहते हैं जी क्योंकि नया पाकिस्तान है. So this term has become a cliche, or when it has become a cliche, it has lost its power, it has lost its powerful meaning to communicate. So you need to avoid cliches. Buzzwords क्या होते हैं? Buzzwords newly coined words होते हैं या newly coined terms होती हैं जिनको often we associate these terms with technology, business or cultural changes. And these buzzwords are difficult to handle as compared to cliches. जो buzzwords होते हैं उनको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है क्लीशेज़ की निस्बत, क्योंकि buzzwords these are newly coined terms and these terms are associated with the business, technology or cultural changes. So you need to use, however buzzwords quickly becomes cliches, लेकिन आपको ये you need to also be careful using buzzwords. The careful use of the buzzwords can also give the signal to your audience that you are insider. जब आप कोई ऐसी किसी ख़ास स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो उसे पता चल जाता है, जो आपका रीडर और ऑडियंस होता है, दे गेट एन आइडिया कि आप जो इनसाइडर हैं, आप अंदर के बंदे हैं, आपको इस चीज़ की टर्मिनोलॉजी का पता है. सपोज़ अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपकी मतलब वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है, उससे आपको पता चलता है अच्छा जिसके पास इस चीज़ का नॉलेज है, इसको पता है. तो आप सम टाइम उन बज़वर्ड्स की वजह से यू स्टार्ट असेसिंग दैम. तो इट मीन्स दैट व्हेन यू यूज़ बज़वर्ड्स इट कैन सिग्नल दैट यू आर इनसाइडर एंड यू हैव अ नॉलेज. सो बज़वर्ड्स और क्लीशेज़ में ये डिफरेंस है कि क्लीशेज़ जो हैं वो वाले वर्ड्स और वो वाले फ्रेजेस होते हैं. मैंने भी आपको एग्जांपल से भी बताया कि दैट बिकम्स सो कॉमन कि वो इतने कॉमन हो जाते हैं कि दे हैव लॉस्ट देयर मीनिंग एंड दे हैव लॉस्ट सम पावर टू कम्युनिकेट. एंड बज़वर्ड्स आर न्यूली कॉइंड टर्म्स होती हैं जो स्पेसिफाई, जिनको एसोसिएट किया जाता है टेक्नोलॉजी से, बिजनेस से और कल्चर चेंजेस से. So you need to avoid cliches and be careful using buzzwords. And the fourth one is use jargons carefully. अब ये jargons क्या है? Jargons जो है एक specialized language को कहते हैं. Specialized language of particular profession, किसी ख़ास profession की, जैसे मेडिकल का profession उसकी एक अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज है. इसी तरह जो है एक बिज़नेस है उसकी अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है. सिमिलरली उसकी कुछ अपनी पर्टिकुलर टर्म्स हैं. इसी तरह आप अगर ब्यूटी सैलून की बात करें, उनकी अपनी जो है ये फेशियल वगैरह उनकी अपनी एक टर्म्स हैं, उनकी अपनी स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज और पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है. और पर्टिकुलर प्रोफेशन जो है इट मीन्स द स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन. बेसिकली जार्गन्स जो हैं वो एक स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है किसी ख़ास प्रोफेशन की. It is a specialized language of a particular profession or industry. Has a bad reputation, और इसकी reputation इतनी अच्छी नहीं होती, but it's not always bad. Using jargon is usually an efficient way to communicate with those people or within the specific group that understand these terms. आपको जार्गन्स हर आप कॉमन बंदे के साथ अगर जो है वो आप उस स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर देंगे, स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज को जो कि पर्टिकुलर प्रोफेशन की लैंग्वेज है, अगर आप उसको यूज़ करने लग जाएंगे हर कॉमन पर्सन के साथ, तो दे विल इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम और इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर देम टू अंडरस्टैंड. तो उनको ये समझ ही नहीं आएगी कि आप क्या वर्ड बोल रहे हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं, आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं. तो आपने जार्गन्स जो है वहाँ पर यूज़ करने हैं. इट्स एन एफिशिएंट वे टू कम्युनिकेट विद इन द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पीपल, कि उन लोगों के बीच में आपने जार्गन्स को यूज़ करना है हु वुड एबल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, जो इन टर्म्स को और इन फ्रेजेस को अंडरस्टैंड कर सकें, इन जार्गन्स को अंडरस्टैंड कर सकें. यानी कि सपोज अगर एक डॉक्टर है, अगर वो मेडिकल की तमाम टर्मिनोलॉजी आम कॉमन पेशेंट के साथ शेयर करेगा तो वो पेशेंट तो अनएबल है, ही डज़ नॉट नो कि क्या मेडिकल टर्म्स हैं. लेकिन वो अगर वही मेडिकल टर्म्स या वही जार्गन्स यूज़ करेगा अपनी प्रोफेशन के लोगों में, स्पेशलाइज्ड और पर्टिकुलर
प्रोफेशन में और स्पेशलाइज्ड लोगों में, देन दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. So this is using jargons becomes useful way to communicate when it is used within the specific group that can understand or that understand these terms. अगर आप यही jargon जो है कॉमन लोगों के साथ यूज़ करने शुरू हो जाएंगे तो दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि आप किस चीज़ के बारे में बात करें. तो यू नीड टू बी केयरफुल यूजिंग jargons. अभी जो लास्ट 2 पॉइंट्स है उसमें ये था कि यू नीड टू अवॉइड क्लीशेज. क्लीशेज में फिर आई रिपीट कि क्लीशेज क्या होते हैं. क्लीशेज जो हैं दीज आर दोज टर्म्स एंड फ्रेजेस so common that they have lost some of their power to communicate. And buzzwords, be careful using buzzwords. Buzzwords जो हैं you need to choose or use the buzzwords in a right situation. और buzzwords जो हैं these are newly coined terms often associated with technology, business or cultural changes. And third था जी you need to be very careful using jargons. Jargons जो हैं ये एक specialized language है of a particular profession. किसी भी खास प्रोफेशन की स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज को जार्गन्स कहते हैं. बट यू नीड टू बी केयरफुल इन यूजिंग जार्गन्स. एंड जार्गन्स इज यूजुअली यूज्ड एंड इट इज़ अ गुड वे और इट इज़ एन एफिशिएंट वे टू कम्युनिकेट टू दोज और विद इन द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पीपल दैट कैन अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. ठीक है जी, होपफुली इट विल बी क्लियर टू यू. इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी कंपोजिंग योर मैसेज, क्रिएटिंग इफेक्टिव सेंटेंस. अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है डिस्कस किया था कि राइटिंग के 3 लेवल्स हैं, जिनमें नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, नंबर 2 इज़ इफेक्टिव सेंटेंसेज एंड नंबर 3 इज़ कोहेरेंट पैराग्राफ. तो अभी जो हमने पूरे लेक्चर जो है डिस्कस किए वो हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड से रिलेटेड. ठीक है जी, वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कैसे होने चाहिए और जो है वो फाइंडिंग वर्ड्स दैट कम्युनिकेट वेल. और उसके बाद स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करने हैं, आपने ग्रामर मिस्टेक्स और एरर्स अवॉइड करने हैं, करेक्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं, इफेक्टिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है बैलेंस करना है एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट वर्ड्स को, और देन जो है फाइंडिंग वर्ड्स दैट कैन कम्युनिकेट वेल.